بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی آبی دہشت گردی واٹر ٹیررزم ہم نے ہوا میں بھی ثابت کیا کہ معاف نہیں کیا جا سکتا بنیان و مرصوص میں. تو یہ پانی روکنا یہ تو انٹرنیشنل لاء کے بھی اگینسٹ ہے. اپر سائڈ انڈیا کے پاس ہے, لوور سائڈ ہمارے پاس ہے. کبھی وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اطلاع کے بغیر, کبھی روک لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں, وہ اس قضیے کو کہاں کہاں پہ اٹھا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. اور جو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ انڈس واٹرز ٹریٹی جو ہے یہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, جس کو دونوں کنٹریز نے سائن کیا. اور سائن کرتے وقت اس کے اندر جو آرٹیکل 12 ہے اس میں یہ لکھا گیا, دونوں پارٹیز نے اس کو ایگری کیا, سائن کیا کہ یہ ٹریٹی فل فورس میں رہے گی اس وقت تک جب تک کہ جو ہے وہ اس ٹریٹی کے اندر دونوں پارٹیز کے ایگریمنٹ سے کوئی ماڈیفیکیشن نہ ہو جائے. اب اگر آپ اس ٹریٹی کو دیکھیں تو کیونکہ اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن ابھی نہیں ہوئی اور یہ فل فورس میں ہے, تو دیر فور یہ ٹریٹی پاکستان کو اس کے ویسٹرن ریورز آف دی انڈس بیسن کے اوپر ایک ان ریسٹرکٹیڈ رائٹ دیتی ہے, جس کو انڈیا نے ایگری کیا ہوا ہے. اب اس ان ریسٹرکٹیڈ رائٹ ٹو یوز دا واٹرز آف دا 3 ویسٹرن ریورز بائی پاکستان, ٹریٹی نے اس کو اس طریقے سے فریم کیا ہے کہ ایسٹرن ریورز اور ویسٹرن ریورز کو 2 سفیئرز میں سپلٹ کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ لوور ریپیرین, پاکستان بینگ اے لوور ریپیرین, اس کی ڈیپینڈنس نہ ہو انڈیا کے اوپر. اور ایسٹرن ریورز کو پاکستان نے کوئڈ پرو کو کے تحت ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ انڈیا اپنے جو ہے وہ ان ریسٹرکٹیڈ یوز کے لیے وہ زیر مصرف لا سکتا ہے. اور اس کا بینیفٹ لیا انڈیا نے آل along. اب اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال اپریل میں انہوں نے ایک یونیلیٹرل اناؤنسمنٹ کی کہ وہ ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کر رہے ہیں, جس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے, پرٹیکولرلی ان ویو آف دا ٹریٹی اٹ سیلف اینڈ پرٹیکولرلی اٹس آرٹیکل 12. تو اس حوالے سے اب پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں, جو آپ کا سوال تھا, وہ ایک تو ٹریٹی کا اپنا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے تحت کورٹس آف آربیٹریشن کے پاس ہیں یہ رائٹس کہ اگر اس ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن یا اپلیکیشن کے حوالے سے کوئی کویسچن ارائز کر جائے اور دونوں پارٹیز کے بیچ میں وہ کویسچن اگر بائی لیٹرل لیول پہ ریزالو نہ ہو, تو اس کو اس ٹریٹی کے فریم ورک کے تحت کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس ریفر کیا جائے گا. ٹھیک. کورٹ آف آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہمارے ساتھ اس وقت چل رہی ہیں, جو کہ اسینشلی اس ابینس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھیں 2022 میں نومبر میں. تو جب انڈیا نے 2025 میں ٹریٹی کی ابینس کی اناؤنسمنٹ کی, تو اس پہ کورٹ آف آربیٹریشن نے دونوں پارٹیز کو انوائٹ کیا کہ اس اناؤنسمنٹ کی روشنی میں آپ دونوں پارٹیز اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ کورٹ کے آگے سبمٹ کریں, تاکہ کورٹ کی ایک کنٹینیوئنگ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن کو اسیس کرے ان ویو آف دی کرنٹ سرکمسٹانسز. انڈیا نے کیونکہ کورٹ آف آربیٹریشن کا بائیکاٹ کیا, لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن کورٹ کے سامنے بہت کلیئرٹی کے ساتھ پیش کی, جس کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر جون 2025 میں ایک فیصلہ دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جورسڈکشن جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے, اور اس ابینس کی اناؤنسمنٹ سے کورٹ جو ہے وہ ڈپرائیو نہیں ہوتی اپنی جورسڈکشن سے, اور ہم اس کے اوپر میرٹس پہ فیصلہ دیں گے جو بھی میٹر ہمارے سامنے ہوگا. اس کے بعد جو ہیں ہمارے پاس آپشنز, کیونکہ انڈیا اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہا, اپنی ایک obligation کو فلفل نہیں کر رہا, تو یونائٹڈ نیشن کا فورم بھی اویلیبل ہے. جیسے میں کچھ روز سے, جیسے کل پرسوں ایک سیمینار ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا, اس میں بھی میں نے بتایا, اس سے پہلے آرٹیکلز میں بھی, کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, جو کہ فارن منسٹر ہیں, سینیٹر محمد اسحاق ڈار, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ کو, سیکرٹری جنرل کو. اسی طرح پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو نے بھی اس کو UN کے فورم کے اوپر ریز کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. تو ایک پیسفل نیشن کے طور پہ جو بھی لیگل کورس ہے پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومت کا واضح موقف بھی ہے, جو کہ پچھلے سال اپریل میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اسٹرانگ ریزالو کے جو ہے وہ طور پہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کے رائٹس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے اگر وہ انفرنج ہوتے ہیں بیکاز آف اینی یونیلیٹرل ایکشن بائی دی اپر ریپیرین, تو پھر وہ ایکٹ آف وار ہوگا. تو نیچرلی وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن وہ ایکٹ آف وار کی اناؤنسمنٹ یا وار کی اناؤنسمنٹ پاکستان کی سائڈ سے نہیں ہے. اگر پاکستان کو کمپیل کیا گیا اس طرف, تو نیچرلی پھر پاکستان اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی جو ہے وہ آپشن کو استعمال کرنے سے
दरेक नहीं करेगा। अच्छा शाह साहब, आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने भी उसको देखा, अटेंड भी किया। इंटर वाटर ट्रीटी के हवाले से एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे। पाकिस्तान अपनी एकेडेमिया और रिसर्च जो साइड है वो भी साथ लेके चल रहा है, रैशनल और आर्गूमेंट के साथ, जबकि हिंदुस्तान का जो है वही एक्सट्रीम हिंदुत्व आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी प्रिवेल कर रही है। तो दुनिया को क्या इस कॉन्फ्रेंस से मैसेज गया है कि हमारा आर्गूमेंट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम अपने एक्सपर्ट से जो इरिगेशन के वाटर के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया हमने और पूरी दुनिया को दिखाया, मीडिया कवरेज हुई कि पाकिस्तान का केस कहाँ पे खड़ा है। तो आप क्या समझते हैं इस कॉन्फ्रेंस का इंडर वाटर्स ट्रीटी जो है 2026, ये ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। एक तो ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान की पोजीशन नहीं थी। ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए थे, और उसके अंदर पूरी बात को वजाहत के साथ बयान किया गया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन किसने क्रिएट की है। नेचुरली वो इंडिया ने क्रिएट की है। उसके ऊपर ट्रीटी क्या कहती है और लॉ क्या कहता है। तो ये पूरी वजाहत के साथ, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि अगर जो है वो इंडिया अपनी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करता है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में ख़ास तौर पे वो पावर्स, इंटरनेशनल पावर्स जो जिनके पास लेवरेज है, ये बात उनको वाज़े तौर पे बताई जाए कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को देख रहा है कि ये एक ग्रेव क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा के नतीजे में जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को ख़तरा लाहक होगा, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और उसके लिए एक जो है वो रास्ता मौजूद है कि ट्रीटी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो देयरफॉर उस सिचुएशन के वकूफ़ पज़ीर होने से पहले वो तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो उनको भी कॉल अपॉन किया गया, अर्ज अपॉन किया गया कि वो इस क्राइसिस को डेवलप होने से पहले अपना लेवरेज यूज़ करें और इस रीजन की के पीस और स्टेबिलिटी के लिए अपना रोल प्ले करें। अच्छा शाह साहब, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, चिकन नेक का मामला भी है, लेकिन वाटर क्राइसिस बांग्लादेश में या नेपाल के साथ भी उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान ने इस हवाले से एतमाद में लिया है, बिलखुसूस जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का शिकार हैं? देखिए, ये पानी के हवाले से मैं जो है वो सिर्फ बात करूं अगर, जी। तो उस हवाले से नेपाल और इंडिया का अगर आप रिलेशन देखें ट्रांसबाउंडरी वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो नेपाल अपस्ट्रीम राइपेरियन है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश इज डाउनस्ट्रीम टू इंडिया। तो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की ट्रीटी थी वो इस साल 2026 में 30 साल पूरे करने के बाद वो ख़त्म हो रही है, और जाहिर है बांग्लादेश के कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पे गैंजेस रिवर के ऊपर जो फराका बैराज है वहाँ पे एक जो है वो ट्रीटी के तहत तय किया गया था कि 35 से 40 हज़ार क्यूसेक के करीब पानी पहली प्रायोरिटी पे इंडिया की कैलकाटा की बे को फ्रेश करने के लिए लिया जाएगा, और फिर बाकी का पानी बांग्लादेश के लिए होगा। वो ट्रीटी ख़त्म हो रही है, तो नेचुरली बांग्लादेश का एक अपना ट्रांसबाउंडरी वाटर रिलेशन है विद इंडिया। हमारा जहाँ तक मौक़िफ़ है वो यही है कि हम एक बायलैटरल ट्रीटी के तहत इंडिया के साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं और होप करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। तो ये हमारा स्टैंड पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया के सामने है, बशमूल बांग्लादेश और नेपाल। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस मौक़िफ़ की तरदीद करेंगी। अच्छा शाह साहब, इंडिया हमेशा से हर फ्रंट पे एग्रेसर रहा है। अगर वो पानी बंद कर देते हैं या पानी ज़्यादा मकदार में छोड़ देते हैं, दोनों सूरतों में ये एग्रेशन है, वाटर टेररिज्म है, तो उस सूरत में पाकिस्तान क्या कर सकता है? मैंने जैसे अर्ज किया ना, पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में, और अगर उनकी कोई वायलेशन होती है तो इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा इलेबोरेट मैकेनिज्म है जो कि ट्रिगर होता है, जिसके तहत बायलैटरल लेवल पे पहले आप रीच आउट करते हैं और एक गुड फेथ एफर्ट करते हैं कि ये मैटर रिजॉल्व हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रिजॉल्व हो। और इन केस बायलैटरल लेवल पे नहीं होता तो फिर थर्ड फोरम के ऊपर ट्रीटी अलाउ करती है एग्रीव्ड पार्टी को कि वो अपने मैटर को थर्ड पार्टी के पास लेके जा सकती है। तो ये वायलेशंस हैं, और उन वायलेशंस को एड्रेस करने के लिए रेमेडीज प्रोवाइडेड हैं, और वो पाकिस्तान उनसे पूरे तरीके से आगाह है और अपने राइट से भी आगाह है, और उनको किस टाइम के ऊपर इन्वोक करना है एक
रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, वो भी हमने देखा। माजी में आपने देखा कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के लॉफुल जो इंटरवेंशंस हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन जहां पे वायलेशन होती है और अनलॉफुल कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल भी कतई तौर पे एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहे, और जो है वो आगे भी जितनी रेमेडीज हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, शाह साहब, आखिर में ये बताइए कि आप चूँकि कमिश्नर हैं इस इंडस वाटर के हवाले से, आपका इंडियन डेलीगेट्स के साथ ज़ाहिर है कोई ना कोई राब्ता, कोलैबोरेशन या कोई म्यूचुअल कोई ऐसा एक्सचेंज होता है, या वो भी भारत सरकार के दबाव में हैं, कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है, या उनकी भी वही रविश है जो मोदी सरकार की है? जब उन्होंने ट्रीटी को बेंस में प्लेस किया तो उसके बाद तो कोई जो है वो उनकी तरफ से राब्ता नहीं है, डिस्पाइट ये कि हमारी तरफ से जो है रिपीटेड रिक्वेस्ट उनके पास गई हुई है। नेचुरली फिर हम जो है वो इस मैटर को थर्ड फोरम के पास ले जाने के लिए मजबूर हैं, और वो हम लेके गए भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से बायलैटरल लेवल पे किसी किस्म की कम्युनिकेशन या कोई भी इंगेजमेंट नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि आपके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि आपने उनको जो रिक्वेस्ट की हैं इस हवाले से कि आप कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे लिटिगेशन के मामले में आता है तो आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखा सकें कि हमने तो इतनी बार राब्ता किया, आगे से कोई जवाब ना आया है, ऐसा ही है? बहुत अच्छा फ्रेम किया आपने, बहुत अच्छा। यही यही बात है, ये बिल्कुल ऐसे है। न सिर्फ ये कि मुस्तकबिल में जिस वक्त हमें इसको पेश करना पड़ेगा लिटिगेशन में हम करेंगे, बल्कि मौजूदा जो लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हमारी कंटिन्यूड हैं ये हमने उनके अंदर भी पेश की, जो टाइम टू टाइम पिछले साल अबेंस के बाद से हमने उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस की, उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, ये बताएं, अगर इंडिया के साथ हमारा ये मामला चलता रहता है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव वाटर रिजर्वायर रूट्स हैं कि जिनको हम यूटिलाइज कर सकें, या टोटली डिपेंडेंट हैं इसी पे? ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये इसमें एक तो ये बात है कि जब हम ये ना दो मुख्तलिफ ट्रैक्स की ये गुफ्तगू है। पहला ट्रैक जो है वो है राइट्स का और ऑब्लिगेशंस का, जिसके ऊपर अभी तक हमने बात की है। जो दूसरा ट्रैक है जो आपका सवाल है, ये बेसिकली एक सेपरेट ट्रैक का क्वेश्चन है। इसका एक तो मैं पहले वाजे करूं कि हमारे इन हाउस कैपेबिलिटी क्या है, हम उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसका किसी तौर भी इंडस वाटर्स ट्रीटी के राइट्स के साथ कोई ठीक जो हो है गया। वो लिंकेज नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि आपने सवाल किया तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनका पानी इंडिया और जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से होके आता है। उसमें ज़्यादा वनरेबिलिटी चनाब के ऊपर है, क्योंकि चनाब का तकरीबन 100% कैचमेंट जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, और कुछ कुछ पार्ट उससे ऊपर जो है वो हिमाचल में है। ठीक। अब अब इस हवाले से इंडियन साइड के जो है वो ट्रीटी जो है वो इंडिया के कंट्रोल को लिमिट करती है, खासतौर पे वेस्टर्न रिवर्स के नेचुरल पैटर्न ऑफ फ्लो को। जब वो डिस्टर्ब होता है तो जाहिर है उसकी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मैनिफेस्टेशंस पाकिस्तान में नजर आती हैं। सबसे पहली जो हमें फील होती है स्ट्रेस, वो हमें चनाब रिवर पे मराला बैराज पे होती है। मराला बैराज से हमारी दो नहरें निकलती हैं, एक अपर चनाब कैनाल है, दूसरी मराला रावी लिंक कैनाल है। उसके नीचे खान की बैराज है। खान की बैराज के अंदर से भी जो हमारी हैं वो प्रैक्टिकली दो ही नहरें निकलती हैं, एक लोअर चनाब कैनाल है और एक फिर हाँ लोअर चनाब कैनाल है, एक ही नहर है। और उसके बाद कादराबाद बैराज है, वहाँ से कादराबाद बल्लो की लिंक है। तो ये तीन जो बैराजेस हैं, और ये इनके ऊपर अगर ऊपर से पानी की मैनिपुलेशंस हो तो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि चनाब जो है वो प्लेन एरियाज के अंदर है, तो यहाँ पे वो एक वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनाना यूजुअल कंडीशंस के अंदर जनरली रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अब इंडिया की मैनिपुलेशंस हैं उस हवाले से भी, और प्लस पाकिस्तान ऑलरेडी 2018 से अपने बड़े वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर मसरूफ है, और गवर्नमेंट की उसके साथ प्रायोरिटी भी जो है अटैच्ड है, और प्रोविंसेस की भी प्रायोरिटी अटैच्ड है। उस पर कंसेंसस है चारों फेडरेटिंग यूनिट्स का, जिसमें दयामिर भाषा डैम हमारा है, और उस पर काम जारी है। उस के ऊपर उसकी फाउंडेशन वर्क के ऊपर जो है वो काफ़ी सारा काम वापडा ने किया सक्सेसफुली इन द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट चेयरमैन वापडा। तो ये पाकिस्तान अपने जो है वो इन हाउस वाटर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक जर्नी के ऊपर ऑलरेडी है, और उसमें जो है वो ग्राउंड वाटर को डिसिप्लिन में रखना, वाटर कंजर्वेशन, और ये सारी चीज़ें एक कोहेरेंट वे में कंसर्टेड एफर्ट के तौर पे कंटिन्यूड है। बहुत शुक्रिया सैयद मेहर अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंडस वाटर